makeshift oven यहाँ पर तैयार करना है तो एक कुकर ले लीजिए। कुकर लेने के बाद उसकी जो रबर है और उसकी सीटी है उसको आपको निकाल देना है। I've gotten a lot of requests to review your food lab after our previous video with Chef Ranvi, and today we're going to see how he makes his tandoori chicken. My name is James Makinson. I've been cooking as a chef for many years in the United States and over here in Europe, and I have plenty of other videos and recipes on my YouTube channel as well. And if you do happen to enjoy this video, then be sure to give it a like, maybe a share, and don't forget to subscribe so you don't miss out on any future content, and it means a lot to me. Now, let's get started. सबसे पहले तंदूरी चिकन के मैरिनेड की तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। If any of you guys haven't seen our last review of Joshua Wiseman making some tandoori chicken at home, then you should definitely go check that out after watching this video, because Joshua even bought a tandoori oven to make that just for the video. He put a lot of work into it. मैरिनेड के लिए हंकड़ यानी टंगा हुआ दही बनाने के लिए एक छन्नी ले लीजिए। छन्नी के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रखिए। अब इसके अंदर 3/4 कप दही यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। दही को ऐड करके आपको मलमल के कपड़े को इस तरीके से ले लेना है और हल्का हल्का एकदम लाइटली स्क्वीज करना है कि जितना आप पानी इसमें से निकाल पाए पहले वो निकाल दीजिए। एक बार इसमें से पानी निकलना बंद हो जाए, जो वे है वो निकलना बंद हो जाए, तो इसको छन्नी के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। जो एक्सेस पानी है वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। लगभग आधे 1 घंटे के लिए इस तरीके से दही को रहने दीजिए। आधे 1 घंटे के बाद आप देखेंगे इस तरीके से दही जो है आपका एकदम चक्का बन जाएगा, एकदम थिक हो जाएगा और ये हमारा हंकर्ड रेडी हो गया है मैरिनेट के लिए। For those of you who don't know what a muslin cloth is, some also call it a cheesecloth, we use these in the kitchen to collect fine particulates that we don't want in our stocks or whatever else we're trying to strain. So we do typically use these whenever we're trying to make something that's very fine, that we don't want a lot of debris in. But you can use muslin cloths for a lot of things. You can use them to make a little boutique garni if you want. So it contains all the herbs and the spices for when you use it. You can also use them, as he is doing here in the video, to hang cheese or yogurt or anything like this. They're quite versatile. अब चिकन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है। मैंने आज लेग और थाई के जो पीसेस होते हैं इस तरीके के वो ले लिए। आप होल चिकन भी ले सकते हैं या सिर्फ चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। अब ये चिकन के ऊपर हमको गैशेस लगाने यानी कि कट लगाने हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे इस तरीके से लंबे यहाँ पर आपको थाई के ऊपर 2 कट लगाने हैं। तो 2 कट इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद आपको लेग के ऊपर जो ड्रमस्टिक है उसके ऊपर भी इस तरीके से 2 कट लगा लेने हैं। Now, for anyone watching that doesn't cook a lot and they don't know the difference between chicken breast meat and leg meat, the chicken breast meat tends to dry out a lot faster. So if you overcook it, it will be tough and it will be dry. With chicken breast, you need to cook it like perfectly. With leg meat, on the other hand, you can cook it for not as long as you want, but you can cook it for a little longer and it won't be dry. It shouldn't be, because there's a lot more fat and there's also a lot more flavor in leg meat. ये 2 कट लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जॉइंट है। ये जॉइंट पे भी आपको एक कट लगाना है। तो इस तरीके से जॉइंट पे कट लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक टेंडन होता है। ये टेंडन को भी आपको कट करना है। In the last video, this is one of the few things that Joshua did not do. By scoring the chicken, it will allow us to marinate the chicken quicker, meaning the marinade will be able to penetrate the meat faster than it would if you didn't score it. And it will also allow us to cook the chicken quicker because the heat can easily penetrate the leg meat instead of it not being scored, and it will take you a little longer. इस तरीके से यहाँ पर भी कट लगा दीजिए। ये जो कट्स हैं उसकी वजह से आपकी जो मैरिनेड है वो चिकन के अंदर तक जाएगी और जो जॉइंट और टेंडन पे हमने कट लगाया है उसकी वजह से आपका चिकन जो है वो थोड़ा सा जल्दी पकेगा। That is one nice Japanese knife. I wonder what make it is. तरीके से सारे चिकन को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसकी पहली मैरिनेशन हमको यहाँ पर करनी है। फर्स्ट मैरिनेशन करने के लिए चिकन में टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, 2 टीस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ों को आपको भी अच्छे से मिक्स करना है और आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से चिकन के जितने भी कट्स हैं, जितनी भी जगह है उसके ऊपर अच्छे से मसाज करना है ताकि ये मैरिनेड अच्छे से चिकन को लग जाए। पहला मैरिनेड आपने एक बार कर लिया है। उसके बाद इस चिकन को आपको आधे से 1 घंटे के लिए बस इसी तरीके से फर्स्ट मैरिनेड में मैरिनेट होने देना। Now for this recipe being 2 marinations, and the first marination is about 1.5 hours to 2. If you don't have that much time, that's fine. You can split this recipe up, maybe and do half the work in the morning, allow it to marinate, and then finish it a little later on when you do have time. Because if you are in a bit of a rush, and well, for others that don't actually like to marinate for a long time, this can be a bit of a
difficult recipe to make because it does require a little bit of time, because the longer you marinate it for the chicken, the more flavor it will have. कट्स जो मैंने आपको बताया जैसे लगाने हैं वो तंदूरी चिकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से वो तंदूरी चिकन का जो लुक भी है वो भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा और साथ ही में आपका जो चिकन है वो परफेक्टली कुक भी होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कट्स इसी तरीके से लगाना। साथ ही में तंदूरी चिकन की 2 मैरिनेड्स होती है, एक फर्स्ट मैरिनेड होती है और एक सेकंड मैरिनेशन होती है। पहली मैरिनेशन ऐसे बेसिक तरीके की होती है, इससे क्या होता है जो चिकन के अंदर जो जिंजर गार्लिक चिली का जो फ्लेवर है, साथ ही में जो नमक है वो अच्छे से लग जाता है, जो एक स्मेल होती है चिकन की वो भी पूरी तरीके से निकल जाती है। और फर्स्ट मैरिनेड लगाने से जो एक्सेस मॉइस्चर होता है चिकन में वो भी निकल जाता है, पानी होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो भी निकल जाता है और हमारी मैरिनेड जो है अच्छे से चिकन के ऊपर लगती है। Normally when we buy chicken here, we go to the grocery store or the butcher's, and most of the time, especially in the stores, the chicken will be vacuum sealed in a plastic box. And when you open this, depending on how fresh it is, but it normally has a little bit of a smell because of all the gases and everything else that haven't been allowed to escape. Now that's one thing, but if your chicken is a little older and it starts to turn, it will develop a very unpleasant smell. Now you may try and wash that off, but if you still have that smell, you may want to get rid of the chicken and use something fresher, because that means the meat can be turning putrid and you don't want that. You can get yourself sick. It's just a good thing to keep in mind. सेकेंड मैरिनेशन के लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लीजिए। अब इस तेल को हाई फ्लेम के ऊपर आपको जला लेना है, इसकी जो झांस है पंजेंसी है उसको ख़त्म करनी है। एक बार तेल में इस तरीके से धुएं छूटना जब शुरू हो जाएं तब गैस को बंद कर दीजिए। He is right about that. Mustard oil is pungent. Whenever you're going to be smoking oil, taking it up to the smoking point, when you want to get it super, super hot, just be very careful when doing this at home, because I have seen more than one fire in the kitchen. You have a lot of things going on and you can easily forget that the pan is actually getting super hot and you have something else to do, and well, it catches light and that's it. So just be careful. तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए, एकदम भी ठंडा नहीं हो जाना चाहिए, गर्म ही रहना चाहिए, बस हल्का सा ठंडा कर लेना है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून कश्मीरी या देगी लाल मिर्च पाउडर डालनी है, फटाफट से स्टर करना है और इस मिर्ची वाले तेल को एक बोल के अंदर ले लेना है। ये प्रोसेस से तेल की जो झांस है वो भी खत्म हो जाती है और लाल मिर्च में से जो कलर है लाल वाला वो बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट होता है। Now in the last video with Joshua, a lot of you guys did say that color dye is quite common to add, depending on obviously where you eat. Now personally, I love Indian food. The other night we went to an Indian restaurant, not my favorite Indian restaurant here in Barcelona. The one that we do like is called Barbar. It's a little expensive, but it's delicious food. But the restaurant that we did end up going to, you could see the color dye in just about everything. अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को सोक करके उसकी एक पेस्ट बना के रखी है, इसके 2-3 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए ऑप्शनल है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और जो टंगा हुआ दही हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दीजिए। Another thing I love about Indian cuisine is the amount of spices that you use. We don't necessarily use a lot of spices depending on the cuisine that you're making, but we do use a lot of herbs, especially in French cuisine. अब एक विस्क की मदद से अच्छे से आपको इस मैरिनेड को फेंट लेना है। आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और इसमें दही की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ टेक्सचर आ जाना चाहिए। And if anyone can answer this, I would be curious to see what was used before the addition of chilies in Indian cuisine, because chilies today, you see them in just about every single cuisine in the world. I would be very curious to see what was used to achieve this color before this, with other dishes, with curries and with everything else. It'd be very interesting to see what was used. तो आप देख सकते हो एकदम स्मूथ टेक्सचर आ गया है, हर चीज़ अच्छे से मिल गई है। अब इसके अंदर हमको वो तंदूर वाला स्मोकी फ्लेवर देना है, तो इस तरीके से जलता कोयला ले लीजिए, उसके अंदर हल्का सा घी डालिए और फिर धुआं आना शुरू हो जाएगा इसमें से, इसको ढक दीजिए। ढककर आपको 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देना है। जो धुएं का स्मोकी फ्लेवर है वो आपकी मैरिनेड में आ जाएगा और इससे हम वो तंदूर वाले फ्लेवर को रेप्लिकेट कर पाएंगे घर पर। If you have the equipment, doing this little
smoke infusion is a very, very good little trick. It really is. And if you don't have the little bell that he's using called le cloche in French, you'll see a lot of this used for serving and everything, serving platters and everything else. If you don't have this, you can use some clear film. Just drape it over the top of the bowl, make sure that it's tight so the smoke doesn't escape, and that's it. Easy fix. तो 3-4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को निकालिए, ये कोयले को भी निकाल दीजिए। इस स्टेज पर मैरिनेट को टेस्ट कर लीजिए नमक और मसालों के लिए, कुछ कमी है तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा तंदूरी मैरिनेट रेडी हो गया है। अब हमारा जो पहला मैरिनेशन वाला चिकन था उसको चेक कर लीजिए। आप देखेंगे इसने हल्का सा पानी छोड़ा होगा, इस पानी को आपको निकाल लेना और फेंक देना है। ये प्रोसेस आपने कर लिया। उसके बाद अब आप मैरिनेट लीजिए। मैरिनेट को आपको अच्छे से चिकन के ऊपर लगाना है। जैसे पहले मैरिनेट को हमने अच्छे से मसाज किया था चिकन के ऊपर, उसी तरीके से चिकन को अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। सेकंड मैरिनेशन के भी साथ हर एक गैस्चर में, हर एक कट में इसको अच्छे से लगाइए। और एक बार आपने अच्छे से इसको कोट कर लिया है, फिर से आपको मैरिनेट करना है लगभग आधे 1 घंटे के लिए। This is looking like a very tasty recipe for tandoori chicken. अब कई बार क्या होता है, कई सारे शेफ्स भी बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी होता है कि चिकन को आपको 8-10 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अगर आप 8-10 घंटे के लिए मैरिनेट करना चाहते हैं चिकन को, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप पहले मैरिनेट में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में नमक वाली जो मैरिनेट थी उसमें आपको 8-10 घंटे के लिए करना है। और ये दही वाला जो मैरिनेट है उसके अंदर आप सिर्फ आधा 1 घंटा ही करेंगे। दही वाले मैरिनेट के साथ अगर आपने ज़्यादा समय तक मैरिनेट कर दिया तो फिर से जो पानी है वो रिलीज़ होएगा चिकन में से, आपकी मैरिनेशन जो है वो ढीली पड़ जाएगी और फिर वो मैरिनेशन निकल जाएगी कुकिंग के टाइम पे। तो हमें नहीं करना है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। He explains very well. It's a good explanation. If you don't have the time the following day to actually follow through with this recipe, you could marinate it, do the first marination the night before. And that way in the morning or the following day, you can at least finish the chicken if you do all the prep the night before. It's actually probably make your life a lot easier, or do it in the morning if you want to make it for that night. ठीक, आपको ये बता रहा हूँ कि इसको प्रेशर कुकर में कैसे करते हैं और साइमल्टेनियसली आपको ये भी बताऊंगा कि इसको ओवन के अंदर भी कैसे आप तंदूर स्टाइल एकदम कुक कर सकते हैं। तो एक मेकशिफ्ट ओवन यहाँ पर तैयार करना है। तो एक कुकर ले लीजिए। कुकर लेने के बाद उसकी जो रबर है और उसकी सीटी है उसको आपको निकाल देना है। उसके अंदर फिर आपको चेक करना है कि इस तरीके से एक प्लेट है वो इसके अंदर जा सके, कुकर के अंदर। वो एक मेजर कर लो, एक प्लेट को रेडी रख लो और साथ ही में इस तरीके का एक स्टैंड है, आप स्टीमर स्टैंड भी ले सकते हैं ताकि हम इस प्लेट को नीचे से हाइट दे पाएँ। ये सेटअप आपका एक बार तैयार हो जाए तो कुकर को ढक्कन लगा दीजिए और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुकर को प्रीहीट कर लीजिए। If you don't have the tandoori oven and if you don't have more of a European oven, this could be a very good little trick on how to make it at home. The one reason why I think he's adding the ring to the bottom of the pan is to give a bit of height to the chicken so it doesn't boil in its own juices. There's not obviously going to be a lot of juices, but there will be some, but still it's not going to be like a bland chicken because there's a lot of flavor going on here. You have a lot of spices. But it wouldn't be quite the same as the tandoori oven. आपका कुकर प्रीहीट हो जाए तो इस प्लेट के ऊपर आपको चिकन इस तरीके से रख देना है। चिकन को रखने के बाद कुकर को केयरफुली खोलिए। इसके अंदर जो रिंग है उसको रख दीजिए केयरफुली और ऊपर से एकदम केयरफुली कुकर आपका गर्म होगा, इसके अंदर चिकन को प्लेस कर दीजिए, ढक्कन को लगा दीजिए और मीडियम लो फ्लेम पर अभी लगभग आपको 25 से 30 मिनट के लिए इस चिकन को इस कुकर के अंदर पकाना है। तो कुकर वाला मेथड तो देख लिया, अभी ओवन टोस्टर ग्रिलर वाला आपको मेथड दिखा देता हूँ। तो एक बेकिंग ट्रे ले लीजिए, बेकिंग ट्रे के ऊपर इस तरीके से चिकन को रख दीजिए। अब 175 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट किए हुए ओवन के अंदर आपको इसको प्लेस कर देना है और लगभग 25 मिनट के लिए इस चिकन को आपको इसके अंदर कुक करना है। Now in our last video with Chef Ranvi, a lot of you also said that it's not very common to have more of a European style oven. If you can afford it and if you have the space, there are benefits to actually having this type of oven. For one, you can cook a lot more chicken at once instead of using the pressure cooker method. And if you can get an oven that's a convection oven, meaning that there's a fan inside that spins the air, it circulates the air around the oven, I would recommend getting one of those because it gives you an option to use the convection method, and some recipes require this, and the cooking times also change, especially when making, say, cookies or things like this. एक बार 5 मिनट की जब कुकिंग रह जाए आपके चिकन में, ओवन की हो या प्रेशर कुकर की हो, आपको चिकन के ऊपर क्या है, बेस्टिंग करनी। बेस्टिंग यानी कि इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाना है। बटर लगाने से क्या होता है, इसकी सरफेस पे एक अलग सा टेक्सचर आता है और वो टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे तंदूरी चिकन के लिए। तो अब लगभग 20 मिनट हो चुके ओवन वाले चिकन को डालें, तो पहले ओवन वाला चेक कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर आपको यहाँ पर चिकन निकालना है 20 मिनट बाद। उसके बाद इस तरीके से मेल्टेड बटर ऊपर से ब्रश करना है। एक बार आपने मेल्टेड बटर इसमें ब्रश कर दिया है
तो इसको फिर से आपको ओवन के अंदर डाल देना है और ओवन के अंदर डालकर इसको 5 मिनट के लिए लगभग आपको और कुक करना है। This is a good little trick to get some like extra color on the tandoori chicken. Make it look a little more like it would look if you used a tandoor. आप देख सकते हो चिकन के ऊपर कितना परफेक्ट टेक्सचर आ गया है। चिकन हमारा एकदम परफेक्टली कुक हो गया है और इसी के साथ यहाँ पर 25 मिनट भी हो चुके हैं हमारे प्रेशर कुकर वाले चिकन को पकते हुए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर वाले चिकन को भी बेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चिकन हमारा कितनी बढ़िया तरीके से पक रहा है। इसके ऊपर सेम तरीके से थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगाइए, फिर ढक्कन को बंद करके आपको यहाँ पर 5 मिनट के लिए और कुक करना है। अब देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हमारा चिकन पक गया है। इसको भी निकाल कर एकदम केयरफुली आप काउंटर के ऊपर रख दीजिए। आपको दोनों चिकन कंपेयर करके दिखाता हूँ। ओवन वाला जो चिकन है उसमें एक अच्छा टेक्सचर आ गया है क्योंकि ओवन के अंदर जो ग्रिल फंक्शन होता है उसकी वजह से एक अच्छा सा वो चार्ड इफेक्ट आ जाता है जैसे तंदूर में भी आता है, लेकिन वो प्रेशर कुकर में नहीं आया है। लेकिन प्रेशर कुकर को भी हम इक्विवेलेंट बनाएंगे आज। वो टेक्सचर कैसे लाया जाता है मैं आपको भी फटाफट बताता हूँ, बस 1 मिनट में वो टेक्सचर आ जाएगा। इस तरीके से चिकन को एक चिमटे से उठाइए, गैस को चालू कीजिए और डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर आपको इस तरीके से चिकन को हल्का हल्का घुमाना है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट जो हीट लगेगी उसकी वजह से चिकन के ऊपर वो चार्ड मार्क्स आ जाएंगे और आपका वो तंदूरी चिकन वाला टेक्सचर भी रेप्लिकेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एकदम वही वाला टेक्सचर आ गया है और हमारा प्रेशर कुकर वाला जो चिकन है उसको भी एकदम परफेक्ट टेक्सचर मिल गया है। It's really nice that he gives so many useful tips and tricks in the kitchen. If you don't have a tandoor oven and you don't want to use either of these two methods, I would say that maybe using the barbecue or the grill could also be a good idea. It's not going to be cooking quite the same as it would in a tandoor, but that could also be another easy means, especially for anybody in the US. Back home, if you have a lot of space and a grill at home, using the barbecue could be a good method. तंदूरी चिकन बनने के बाद बहुत ज़रूरी है इसके साथ चटनी कौन सी सर्व करते हो, क्योंकि चटनी का तो अलग ही मज़ा आता है तंदूरी चिकन के साथ। तो 2 चटनियाँ बता रहा हूँ आपको, बस 2-2 मिनट में फटाफट बन जाती है। कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। Let me know, guys, what your favorite type of chutney is. Not just for tandoori chicken, but for anything else that you like to use it with. चटनी बनाने के लिए 1 कप ताज़ा धनिया, आधा कप पुदीना, 1 प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टीस्पून इमली, 1 टीस्पून गुड़, Jaggery is cane sugar, if I'm not mistaken. 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 बर्फ का क्यूब और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी अभी आपको एक फाइन चटनी पीस लेनी है। जो बर्फ़ का टुकड़ा डाला है हमने, मैं हमेशा बताता हूँ कि इससे जो हरा कलर है वो काफ़ी अच्छा रिटेन होता है, क्योंकि हीट जो है जनरेट होती है मिक्सर ग्राइंडर में, वो नहीं होगी। तो आप देख सकते हो हरी चटनी को मैंने पीस लिया है, कितना बढ़िया कलर आ गया है और हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है। This is true, and this is a very good, helpful little tip. Anytime that you're going to be making sauces, especially like green sauces or purees, you may have to add a few ice cubes to your blender. More than once I have made some broccoli puree, and if you don't cook it just perfect and then emulsify it in the blender while it's still hot, because it will not emulsify if it's cold, it will turn brown on you. And to fix this, you have to add spinach to give it some extra color, but if you add too much, it won't be broccoli puree anymore, it'll be spinach puree. लाल चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 कश्मीरी लाल मिर्च को डीसीड करके इनके बीज निकाल कर इसको सोक कर लिया था। इन्हें मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़े से धनिए के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1/4 कप इमली, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टीस्पून गुड़, 1 टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एक सेमी थिक चटनी आपको यहाँ पर पीस लेनी है। तो आप देख सकते हो हमारी लाल चटनी भी रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया कलर आया और बहुत ही टेस्टी बनी है। लेट्स प्लेट आवर तंदूरी चिकन YFL स्टाइल। One thing I have to say is the videography is phenomenal. I mean, if you just look at the entire video, but this especially, the B-roll is phenomenal. It's like Joshua, he does a very, very good job. You see the lighting, you see the videography, it looks beautiful, looks delicious. जरूर ट्राई करो ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful tandoori chicken recipe at your home. Cheers.
If any of you guys have tried this recipe, then please let me know down below how good it is, because it does look very good. And hopefully you did enjoy this video, guys. Hopefully I added a little bit of value to this as well, and if you did, then don't forget to give it a like. Check out the rest of my videos on my YouTube channel as well, as I have other recipe videos, not just reaction videos. Maybe give it a share, and don't forget to subscribe as well, as it means a lot to me as our channel continues to grow, and then I can start making some of these delicious recipes as well, because, well, more of you will be interested in it. Until next time, take care, and I will see you again very soon.